اللہ تعالیٰ کی ذات ازل سے ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ جب نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ انسان، نہ جنات، تب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ قلم تھا۔ جی ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا، لکھ۔ قلم نے پوچھا، یا اللہ، کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب لکھ دو۔ یہی وہ لوح محفوظ ہے جس میں ہر چیز کی تقدیر لکھی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم پیدا فرمایا، عرش کو پانی پر قائم فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اللہ نے نون محمدی پیدا فرمایا، جو تمام انبیاء اور مخلوقات کی اصل ہے۔ کئی مشہور اسلامی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ نون محمدی کو پیدا کر کے اس سے پوری کائنات کو وجود بخشا گیا۔ قرآن مجید میں صاف الفاظ میں آیا ہے، سورۃ الرحمن آیت 15، اور ہم نے جنات کو پیدا کیا آگ کے شعلے سے۔ جنات وہ مخلوق ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے پیدا کی گئی۔ یہ زمین پر آباد تھے، بستیاں بساتے تھے، عبادات کرتے تھے، اور ان میں بھی نافرمان اور فاسق موجود تھے۔ بہت جلد جنات میں فتنہ، فساد اور قتل و غارت شروع ہو گئی۔ ان کے درمیان لڑائیاں، خون ریزی اور بغاوتیں ہونے لگیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی جنہوں نے جنات کو قتل کیا، کچھ کو بھگا دیا اور کچھ کو قید کر لیا۔ اسی قوم جن میں سے ایک جن تھا حارث، جو بعد میں ابلیس کہلایا۔ وہ اتنا عبادت گزار تھا کہ فرشتوں کی صف میں شامل ہونے کی اجازت مل گئی۔ وہ ہر آسمان پر سجدہ کرتا، ہر جگہ عبادت میں مشغول رہتا۔ کتاب قصص الانبیاء اور تاریخ ابن کثیر کے مطابق ابلیس نے 80,000 سال تک اللہ کی عبادت کی۔ وہ عرش کے قریب بھی عبادت کرنے والا سب سے نمایاں جن تھا، لیکن اس عبادت کے پیچھے تکبر، غرور اور خود کو برتر سمجھنے کا بیج چھپا ہوا تھا۔ یہی وہ بیج تھا جس نے ایک دن فتنے کا دروازہ کھول دینا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ابلیس کا رتبہ بڑھتا گیا۔ فرشتے اس کی عبادت سے متاثر ہوتے، وہ علم میں بھی ماہر تھا اور عبادت میں بھی ممتاز۔ یہاں تک کہ فرشتوں کی مجلس میں شامل ہونے لگا، حالانکہ وہ فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا، جیسا کہ قرآن میں آیا۔ سورہ الکہف آیت 50۔ وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، لیکن اس تمام مقام و مرتبہ نے اس کے دل میں تکبر اور خود پسندی پیدا کر دی۔ وہ سمجھنے لگا کہ وہ سب سے بہتر ہے، خاص طور پر آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اعلان فرمایا، سورۃ البقرہ آیت 30، بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا اللہ، کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی برتری اور انسان کے پوشیدہ کمالات کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کی مختلف اقسام کی مٹی جمع کرے، سفید، سیاہ، سرخ، نرم، سخت، تر، خشک۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے رنگ اور مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ قصص الانبیاء اور دیگر کتابوں کے مطابق 3 دنوں تک یہ مٹی گوندھی گئی، اس میں خوشبو پیدا کی گئی، پھر اسے شکل دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اور یوں پہلا انسان وجود میں آیا۔ قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ الحجر آیت 29، پھر جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے میں اپنی روح پھونکی تو وہ بولنے لگے، حرکت کرنے لگے اور زندہ انسان بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا،
सूरत सुआद आयत 72। फिर जब मैं इसे मुकम्मल बना दूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम उसके आगे सजदे में गिर जाना। ये सजदा इबादत का नहीं था, बल्कि तज़ीमी सजदा था, इंसान की इज्जत, इल्म और मकाम का इजहार था। तमाम फरिश्ते फौरन सजदे में गिर गए, मगर सिवाय इब्लीस के। इब्लीस, जो जिन्नात में से था, सजदा करने से इनकारी हो गया। अल्लाह ताला ने पूछा, ए इब्लीस, तुझे सजदा करने से किस चीज ने रोका, जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया? इब्लीस ने जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूं, मुझे तो ने आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। ये वो जुमला था जिसने इब्लीस को हमेशा के लिए लानती बना दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, तो यहां से निकल जा, बेशक तो मरदूद है और तुझ पर क़यामत तक लानत है। इब्लीस ने अल्लाह से कहा, या रब, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे मोहलत है, मगर जो मेरे बंदे होंगे उन पर तेरा बस न चलेगा। इसी दिन से शैतान इंसान का खुला दुश्मन बन गया। उसने कसम खाई, मैं उन्हें तेरे सीधे रास्ते से रोकूंगा, आगे से पीछे से, दाएं से बाएं से आऊंगा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए। ये इल्म ऐसा था जो फरिश्तों के पास भी ना था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरत अल-बकरा आयत 31, और अल्लाह ने आदम को तमाम नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, मुझे उनके नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने आजिज़ी से अर्ज किया, हमें सिर्फ वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया, बेशक तो सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो तमाम नाम बता दिए और यूं इंसान की इल्मी फजीलत साबित हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया, मगर वो तन्हा थे। दिल में अनस व मोहब्बत की कमी थी। अल्लाह ताला ने उनकी पसली से एक औरत को पैदा फरमाया, हजरत हव्वा। इस्लामी रवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद में थे। जब आंख खुली तो अपने पास हजरत हव्वा को पाया। हजरत हव्वा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थीं और दोनों को हुक्म मिला, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहां से चाहो खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब न जाना। सूरत अल-बकरा आयत 35। इब्लीस, जो जन्नत से निकाला जा चुका था, जन्नत के बारस से वसवसा डालने लगा। उसने हजरत आदम व हवा को क़स्म देकर कहा, मैं तुम्हारा खैर खा हूं, इस दरख्त का फल खा लो, तुम हमेशा जन्नत में रहोगे या फरिश्ते बन जाओगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा ने दरख्त का फल चख लिया। ये उनसे भूल कर हुआ, जैसा कि कुरान में है। सूरत अल-अराफ आयत 22। बस वो दोनों इस दरख्त से खा बैठे तो उन पर उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गईं और वो जन्नत के पत्तों से छुपाने लगे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, उतरो, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे। जमीन तुम्हारे लिए ठहरने की जगह और जिंदगी का सामान है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा से दरख्त का फल चखने की भूल हुई तो अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से जमीन पर उतारने का हुक्म दिया। सूरत अल-बकरा आयत 36। हमने कहा, तुम सब यहां से नीचे उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठहराओ और फायदा है। रवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान के मकाम श्रीलंका सरंदीप पर उतारा गया। हजरत हव्वा को जदा के मकाम पर। कई साल बाद दोनों की अरफात के मैदान में मुलाकात हुई। जमीन पर उतरने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत रंजीदा हुए। वो दिन रात रोते, मुआफी मांगते और तन्हाई में याद करते कि वो जन्नत में थे। फिर हजरत आदम और अम्मा हव्वा ने वो दुआ मांगी जो आज भी हर मुसलमान पढ़ता है। सूरत अल-अराफ आयत 23। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तो हमें मुआफ न करेगा
اور ہم پر रहम ना फरमाए तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। ये इस्लाम की पहली तौबा और मुआफ़ी थी, और इससे ये सबक मिला कि इंसान से गुनाह सरज़द हो सकता है मगर मुआफ़ी मांगना सीख ले। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर पहले इंसान और पहले नबी बने। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को अल्लाह की इबादत, सच्चाई, इंसाफ और अखलाक की तालीम दी। वो खेती बाड़ी, लिबास साजी और आलात का इस्तेमाल सिखाने वाले पहले इंसान थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वक्त के साथ साथ उनकी रहनुमाई की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में से काबील और हाबील का वाक़या तारीख़ का पहला कत्ल है। इसकी तफसील अगले हिस्से में आएगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 1000 साल थी। उनकी वफ़ात के बाद उन्हें ज़मीन में दफन किया गया। रवायात के मुताबिक उनकी कब्र श्रीलंका के मकाम सरंदीब फिर बैत अल-मक़दस में है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में से 2 मशहूर नाम हैं, काबील और हाबील। अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए कुर्बानी का निज़ाम नाजिल फरमाया। दोनों भाइयों को हुक्म दिया गया कि अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करें। रवायात के मुताबिक हाबील ने अपनी भेड़ बकरियों में से बेहतरीन जानवर कुर्बान किया। काबील ने खेत की बासी और खराब फसल पेश की। अल्लाह ताला ने हाबील की कुर्बानी को कबूल फरमाया और काबील की कुर्बानी रद्द हो गई। काबील को हसद हुआ, दिल में गुरूर आया और उसने फैसला कर लिया, मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा। हाबील ने आजिजी से जवाब दिया। सूरत अल-माइदा आयत 28। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाएगा तब भी मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूं जो सबका रब है। मगर काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया। ये इंसान का पहला कत्ल था। फिर अल्लाह ताला ने इसे सबक सिखाने के लिए एक कौवा भेजा जो जमीन खोदकर मुर्दा को छुपाने का तरीका सिखा रहा था। काबील पुकार उठा, अफसोस, क्या मैं इस कौवे जैसा भी ना बन सका कि अपने भाई की लाश दफनाता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में तकरीबन 1000 साल गुजारे। उन्होंने अपनी औलाद को इबादत सिखाई, नेकी, इल्म और सब्र का दर्स दिया और अल्लाह से कुर्बत का रास्ता दिखाया। उनकी वफात के वक्त फरिश्ते तशरीफ लाए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा सिखाई और उन्हें जमीन में दफन किया। ये इंसानी तारीख की पहली वफात और पहला जनाजा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर के खैर व शर, इल्म व जहालत, आजिज़ी व गुरूर, गुनाह व तौबा की कहानी है। अल्लाह ताला ने हमें सिखाया, अगर तुम गिर भी जाओ तो तौबा कर लो, अगर तुमसे खता हो जाए तो नदामत ले आओ, क्योंकि अल्लाह वो ज़ात है जो मुआफ़ करता है, सिखाता है और फिर से नवाजता है। या अल्लाह, हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सच्चाई, सब्र, तौबा और आजिज़ी जैसा बना दे। हमें इब्लीस के गुरूर, हसद और गुमराही से बचा। हमें वो इल्म अता फरमा जो हमें तेरे करीब करे। आमीन सुम आमीन।